that visible? जी आप क्या कह रहे हैं? Visible for you this screen? Yes. Sure. Okay, so today we are moving towards what? We are moving towards free radical substitution reaction. We are moving with free radical substitution reaction. Okay. Okay, this is free radical substitution of reaction of what? This is for Alkanes. alkanes. Okay. Hmm. So you need to remember this, that free radical substitution reaction is always occur in alkanes only. Okay. Okay. We don't have any other homologous series in which we will find this one. Okay. So you need to remember this, that free radical substitution reaction is only for alkanes. Okay. It is only for alkanes. Alkane. Okay. This is the question that they can ask in MCQ and in paper 2 as well. Okay. So you need to remember this. ठीक है. So first of all, you need to understand this thing and this thing. Okay, what is substitution and what is free radical? If you remember these two things, then you can easily understand the phenomena of this reaction. Okay. Okay. So what is free radical actually? If we start for the reaction, so what is free radical and what is substitution? We need to understand first of all these two things. So technically, if I just show you the equation like this, so you can see that a single chlorine replaces a single hydrogen from the methane. Okay. Yes. Okay, you can see that a single chlorine replaces a single hydrogen from the methane, and that is why we will have one Cl which take the place of hydrogen. Okay. Okay. So this is a single replacement, a replacement of single atom. Okay. So one-sided replacement. That is why we know we call this substitution. क्या बोलते हैं इसको? Substitution. Okay. Substitution का मतलब क्या होता है कि कोई किसी की जगह ले ले. ठीक है? ठीक है. आपने देखा होगा फुटबॉल टीम होती है, क्रिकेट टीम होती है, उन सब के अंदर एक प्लेयर सब्स्टिट्यूट होता है ना, जो कि 12th मैन होता है. वो हमेशा रेडी रहता है कि अगर कोई टूट जाए, किसी की टांग टूट जाए, किसी को हार्ट अटैक हो जाए, किसी को कैंसर हो जाए ड्यूरिंग द प्लेइंग, वो उसको फौरन बदल है ना. ऐसी होता है. जी. जी. ऐसा नहीं होता, वो जो गिर जाते हैं बस वो इसलिए होता है. हाँ, इंजर्ड जाते हैं. ड्यूरिंग द फील्ड थोड़ी उनको इतने बड़े बड़े मसले आ जाएंगे. चलो. That was just kidding. Okay, so this is replacement, and all this replacement is due to what? Free radical. किसकी वजह से हो रही है ये? Free radical की वजह से. और फ्री रेडिकल क्या मतलब भाई? देखिए, आपके पास क्लोरीन मॉलिक्यूल है, ठीक है? क्लोरीन मॉलिक्यूल है, या आपके पास है भाई, आपके पास CH4 का मॉलिक्यूल है. वी हैव टू मॉलिक्यूल्स राइट नाउ ना, हमारे पास इन दोनों का रिएक्शन हो रहा है, तो हमारे पास ये दो, ठीक है? आप क्लोरीन की जगह ब्रोमीन भी यूज कर सकते हैं. इट इज ऑल्सो अ हैलोजन. ठीक है, तो इन दोनों में से कोई भी हैलोजन आप यूज कर सकते हैं. ठीक है, और इसके अलावा आप कोई और दूसरा भी अल्केन यूज कर सकते हैं. ठीक है, कोई दूसरा अल्केन आप यूज कर सकते हैं. तो फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो क्लोरीन का जो मॉलिक्यूल का बॉन्ड होता है वो एक्चुअली उनके लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है ना. ठीक है. तो आपको पता है क्लोरीन के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उन्होंने आपस के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया हुआ होता है? शेयर किया हुआ होता है, जिसकी वजह से उनके दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है ना. सेम एज ब्रोमीन के भी लास्ट शेल में कितने होते हैं भाई? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं. उन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया हुआ होता है? शेयर किया हुआ होता है ना, जिसकी वजह से उनके दरमियान एक बॉन्ड होता है, विच इज अ कोवेलेंट बॉन्ड. कौन सा बॉन्ड होता है? कोवेलेंट. ठीक है, यू नीड टू रिमेंबर दिस. दे आर नॉन मेटल्स, दे आर फॉर्मिंग अ नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं ये? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. ठीक है, सो व्हेनेवर वी प्रोवाइड हीट और यूवी लाइट, whenever we provide heat or UV light, heat should be equal to UV light. The sunlight. जितनी एनर्जी सनलाइट में होती है, अगर आप इतनी एनर्जी की हीट भी दे दें, so that is possible कि ये बॉन्ड ब्रेक हो जाए. ठीक है, ओके. so whenever the bond is break, we have two possibilities. One possibility is कि जो इनके दोनों इलेक्ट्रॉन है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, या एक तरफ दोनों चले जाएं और एक तरफ एक भी ना जाए. ठीक है, ठीक है. तो फ्री रेडिकल में क्या होता है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में हमारे पास जो बॉन्ड ब्रेक होता है उसके अंदर जो एक एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने आपस में शेयर किया हुआ है ना, वो इनको वापस मिल जाता है.
सही है। सही है, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, क्या हो गई, इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो हम्म इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं होमोलिसिस। क्या बोलते हैं? होमोलिसिस। You need to remember this, okay? Or you can call this as homolytical fission. Okay, you can call this technique with this term as well. Okay, so what is homolysis is actually, they can ask in paper 2 for the definition of this. So you can call them as breakdown of covalent compound, breakdown of covalent compound, or covalent bond, sorry, covalent bond, and distributing electron, distributing electrons equally, distributing ठीक है। electrons equally between the atoms. Okay, so this is what homolysis. So that means chlorine molecule is breaking homolytically and forming these two atoms, and these two atoms are known as free radicals. What they are called? They are known as फ्री radical. free radical. Why we are calling them free radical? Because they have unpaired electron. What they have? They have Unpaired electron. unpaired electrons. Okay, so whenever any atom has unpaired electrons, so we can call them as free radical. Okay, सही है। and you need to remember that free radicals are highly reactive. Free radicals are highly highly reactive. Okay, and if you talk about methane, methane has 4 bonds. We know that every carbon has 4 bonds. So these 4 bonds, any of them can break down and can cause methyl radical to form, right? ठीक है। So this is also methyl radical. We can call it as methyl radical. And I have told you, free radical is what? Free radical is unpaired electron. Free radical is unpaired electron. If examiner asks you the definition for free radical, so you can say that unpaired electron. If you just write unpaired, so it will give you 1 mark. Okay, and they are highly reactive because they are unpaired. Okay. And one more thing that you need to remember is, देखो मैंने आपको बताया था कि हम फिजिकल प्रॉपर्टीज जब पढ़ रहे थे, तो अल्केन्स आर नॉन पोलर, अल्केन्स आर नॉन पोलर। तो दैट मींस कि आपके पास मीथेन भी क्या होगा, नॉन पोलर होगा, है ना जी। मीथेन नॉन पोलर है, तो दैट मींस आपके पास मिथाइल भी क्या होगा, नॉन पोलर होगा, है ना। दिस इज नॉन पोलर, दिस इज अनचार्ज। क्या है ये? अनचार्ज। इसके पास ना पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है ना, ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। whenever any particle is uncharged, so it is maybe atom or it is maybe free radical. Right now we have free radical, right? ठीक है। तो फ्री रेडिकल कैसे होते हैं? बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं? बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। बताने का मकसद सिर्फ ये है कि इट विल गो फॉर द रिएक्शन, डेफिनेटली बहुत जल्दी से रिएक्शन की तरफ जाएगा, और जैसे ही रिएक्शन की तरफ जाएगा तो रिएक्शन करेगा भी किससे? सिर्फ और सिर्फ नॉन पोलर से। ठीक है, सही है। हमारे पास पोलर भी हो सकते हैं, जैसे H2 है, H2O पोलर है ना, तो इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं जी। हमारे पास NaCl भी है, ये आयोनिक है, तो आयोनिक भी पोलर है, इसके अंदर आयन्स होते हैं ना। तो ये जो मिथाइल रेडिकल है ना, इट विल नॉट गो फॉर पोलर रिएक्शन एंड फॉर आयोनिक रिएक्शन, इट विल ऑलवेज मूव टुवर्ड नॉन पोलर। इसकी तरफ जाएगा ये, नॉन पोलर की तरफ से, क्योंकि ये खुद क्या है? नॉन पोलर है। सही है, सही है। तो अगर हम फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन की बात करें, सो वी हैव थ्री different stages for this. Number 1 is initiation. Number 1 is initiation, and second one is propagation, and third stage is termination. And over these 3 stages, the free radical substitution will complete. Okay, ठीक है। so you need to remember these 3 stages. First of all, we are moving towards initiation, and we have done this. ये हम कर चुके हैं ना जी। अब क्या? जब यूवी लाइट दी और वो ब्रेक करके फ्री रेडिकल। That's good. So that means if someone asks you for the initiation process, so you know that chlorine molecules break into free radicals, or we can write like this ना, हम दो अलग अलग लिखकर बीच में प्लस लिखें, इससे बेहतर है हम इस तरह लिख सकते हैं, है ना। और even we can write like this. Okay, ये दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं। ठीक है, so these two reactions are initiation reactions, and we know that these reactions occur in the presence of UV light. So UV light is what? UV light is condition for this reaction. Okay,
Okay. UV light is actually the condition for this reaction, and you need to remember that it is breaking down the covalent bond by homolysis. Okay. ठीक है. It is the breakdown of bond by equal distribution of electrons. Okay. Okay. You need to remember this. Then we have second thing, which is propagation. Okay. ये सबसे मुश्किल स्टेप है, तो इसको आपने जरा और से देखना है. देखो, अभी मैंने आपको बताया कि आपके पास जो क्लोरीन रेडिकल होगा वो हाईली रिएक्टिव होगा, बिकॉज वो अनपेयर्ड है, तो वो भागेगा रिएक्शन के लिए ना. So right now we are learning about free radical substitution of what? Free radical substitution of methane, है ना? ठीक है. हम किसकी कर रहे हैं अभी? मीथेन की कर रहे हैं. So definitely in the container or in the vessel what we have only methane and chlorine, है ना? जी. क्लोरीन का फॉर एग्जांपल सिर्फ एक मॉलिक्यूल टूटा है, बहुत सारे नहीं टूटे, सिर्फ एक टूटा है, तो फ्री रेडिकल जनरेट हो गया, तो वो दोनों की तरफ पहुंचेगा ना जी, दोनों से रिएक्शन करने की कोशिश करेगा. सो फॉर एग्जांपल पहले वाले को छोड़ देते हैं, दूसरे वाले को देखते हैं. अगर यहाँ रिएक्शन हो जाएगा तो क्या होगा? क्लोरीन रेडिकल क्लोरीन मॉलिक्यूल में से एक क्लोरीन का निकाल कर उसके साथ रिएक्शन करके दोबारा क्लोरीन बना लेगा और एक और क्लोरीन रेडिकल बना लेगा, है ना? जी. तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों कैसे हैं? सेम. तो दोनों की बॉन्ड एनर्जी भी कैसे हुई? सेम, इक्वल. बॉन्ड एनर्जी सेम होती तो रिएक्शन पॉसिबल है नहीं. so that means it is the wrong number, right? ठीक है. So we can remove this. Okay, so अब ये पॉसिबिलिटी बची है कि सिर्फ यहाँ रिएक्शन हो सकता है ना. तो क्या किया? क्लोरीन ने हाइड्रोजन को निकाल दिया फॉर एग्जांपल, ठीक है जी. और हाइड्रोजन को निकाल कर जो हाइड्रोजन निकला उसके साथ रिएक्शन करके क्या बना लिया? HCl. HCl. और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि क्लोरीन ने हाइड्रोजन को निकाला और वहां जाके खुद लग गया और हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल बना दिया. सही है. ये दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं. अच्छा. अब इन दो पॉसिबिलिटीज में से कौन सी वाली पॉसिबिलिटी होगी फाइन पहला रिएक्शन, वो हमें पता करना है. वो कैसे पता चलेगा? वो हमें ऐसे पता चलेगा, हमने आपको बताया था एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज मोर फेवरेबल, है ना जी. तो इस बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी है वो कैसी है? लेसर है. कैसी है? लेस. और इसकी कैसी है? इस वाले की ऐसी है, मोर है, ज्यादा है. ओके. और इस वाले बॉन्ड की कैसी है? लीस्ट है. कैसी है? लीस्ट. तो मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्ट साइड पे एनर्जी जब ज्यादा होगी तो वो रिएक्शन ज्यादा फेवरेबल होगा, है ना जी. तो इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर वाला रिएक्शन मोर फेवरेबल है, नीचे वाला फेवरेबल नहीं है, तो डेफिनेटली नीचे वाला नहीं होगा. कौन सा होगा? ऊपर वाला. ठीक है. ठीक है भाई, तो ये वाला रिएक्शन सबसे पहले होगा. ठीक है. सही. जब ये रिएक्शन हो गया तो हमारे पास क्या जनरेट हो गया? CH3 का रेडिकल. सही है. ओके. अब CH3 रेडिकल कैसा है? हाईली रिएक्टिव. और ये किसके पास जाएगा? मीथेन के पास जा सकता है और किसके पास जा सकता है? क्लोरीन के पास जा सकता है, बिकॉज वी हैव ओनली 2 रिएक्टेंट्स. हाँ जी. तो अगर इसके पास जाएगा तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कैसी हो जाएंगी? सेम. तो दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, है ना. ओके. जी. कैन रिमूव दिस. और अब क्या बनेगा आपके पास? आपके पास क्या बनेगा? ये जो है ना, ये क्लोरीन का जो है ना, ये बहुत ज्यादा ही बहुत, क्योंकि ये बहुत वीक बॉन्ड है ना, तो ये आराम से टूट जाएगा. ठीक है. अब जो है आपके पास ये वाला बॉन्ड जो है, ये वाला बॉन्ड मोर हो गया और ये वाला कैसा हो गया? लेस हो गया. लेस. अब ये रिएक्शन हो सकता है. अब मिथाइल के पास क्लोरीन लग सकता है. ठीक है. ओके. ठीक है. तो इन 2 स्टेजेस आपने देखा कि 2 स्टेजेस में जाकर एक रिएक्शन कंप्लीट हुआ. तो अगर हम ओवरऑल रिएक्शन देखें तो ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास क्या हुआ? हम इसको काट सकते हैं, इसको काट सकते हैं, बिकॉज दे आर अपोजिट साइड्स. तो हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन ये हुआ, है ना. ठीक है. तो एक रिएक्शन में आप देख सकते हैं लास्ट में क्या हुआ कि एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन की जगह पर रिप्लेस हो गया. और इस रिएक्शन में ये पूरा रिएक्शन हुआ किस वजह से? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन की वजह से. ठीक है. ठीक है. दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोपेगेशन. क्या है ये? फर्स्ट स्टेज ऑफ. और फर्स्ट स्टेज क्या हुआ? आपने देखा कि पहले वाले स्टेज में एक हाइड्रोजन निकल गया, यानी कि एक हाइड्रोजन कम हो गया, है ना. जो हाइड्रोजन निकला उसके साथ क्लोरीन ने मिलकर क्या बनाया? HCl. यू नीड टू रिमेंबर दिस कि पहले स्टेज में हमेशा पहले रिएक्शन में क्या बनेगा? HCl. ठीक है. उसके बाद जो फ्री रेडिकल था उसने दोबारा क्लोरीन से रिएक्ट किया. अब क्लोरीन सब्स्टिट्यूट हुआ है. सही है.
अच्छा ठीक है। और ये रिएक्शन तब तक होता रहेगा जब तक आपके पास हाइड्रोजन खत्म ना हो जाए, गायब ना हो जाए। ठीक है, ओ सही। अब हमारे पास ये दोनों चीजें आ गई ना। अब देखो सेकंड जी स्टेज में क्या होगा, आपके पास सेकंड स्टेज में CH3Cl है और क्या है, क्लोरीन रेडिकल है ना। जी। अब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, पहले स्टेज में भाई एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा है ना, और क्या बनेगा, HCl। HCl। और जी। फिर ये CH2Cl किसके साथ रिएक्शन करेगा दोबारा, क्लोरीन के Cl। साथ, और क्या हम्म। सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, क्लोरीन, और क्या बनेगा, हम्म। क्लोरीन रेडिकल है ना। ठीक है। आप कर सकती हैं ओवरऑल रिएक्शन इसके लिए भी। फिर थर्ड स्टेज जी। में आपके पास क्या होगा, थर्ड स्टेज में आप देखेंगे कि CH2Cl2 क्लोरीन और रेडिकल के क्लोरीन साथ का रिएक्ट करेगा, रेडिकल। एक हाइड्रोजन हम्म। कम हो जाएगा। ठीक है, फ्री रेडिकल बनाएगा, HCl बनेगा। फिर ये जो रेडिकल है ये क्लोरीन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा, दोबारा से क्या बनेगा, CHCl3 और क्लोरीन रेडिकल ठीक है। है ना। और फिर आप इसका ओवरऑल रिएक्शन कर सकती हैं। और लास्ट स्टेज क्यों कह रहा हूँ इसको मैं, क्योंकि आखिरी हाइड्रोजन ही बचा है हमारे पास है ना। तो जब हम्म। ये दोबारा से रिएक्ट करेंगे तो जो हाइड्रोजन था बचा कुचा वो भी इसको नाबूद हो गया है, HCl बन गया है। और फिर ये CCl3 क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ मिलकर CCl4 बना देगा। तो सुकून की सांस अब लेगा क्लोरीन जाके, जब उसने सारे हाइड्रोजन को निकाल के घर से बाहर कर दिया। ठीक है, ठीक है। वी नीड टू रिमेंबर दिस कि पहले रिएक्शन में क्या होता है, दूसरे रिएक्शन में क्या होता है, ओवरऑल रिएक्शन क्या होता है, ये ही पास पेपर्स में आता है। ठीक है। तो क्या हालत काट दिया। ठीक है, बाकी बच्चों, साद और अमीना, एनी प्रॉब्लम बेटा, रिवाइज हो गया। ठीक है, ठीक है। मिनाल, एनी प्रॉब्लम बेटा। नो। चलें आगे चलें। जी। अच्छा देखो, पहली बात तो आपने ये बात जहन में रखनी है कि ये जो मैंने आपको बताया है ना, ये सारा मैंने क्यों बताया, देखो जरा, ये स्टार्ट हुआ, सब कुछ सही है, तो सही। अब ये प्रोपगेशन यहाँ से स्टार्ट हुआ ना। अब देखो प्रोपगेशन स्टार्ट हुआ, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 100 मॉलिक्यूल से मीथेन थे है ना। हम्म। तो इसका मतलब 100% रिएक्शन पहले स्टेज पे चल रहा है ना। ठीक है। उसके बाद एक मॉलिक्यूल बन गया किसका, CHCl3 का है ना। जी। यानी कि 1% रिएक्शन होना शुरू हो गया ये वाला, सही है। ठीक और है। फिर 99 ये रह गया, सही है। हम्म। तो ये इसी तरह चलता रहेगा और इसी तरह ये बढ़ता रहेगा है ना। ओके। जितना ये बढ़ेगा उतना ये वाला रिएक्शन बढ़ेगा है ना। हम्म। जितना ये वाला रिएक्शन ज्यादा होता जाएगा उतना इतना ये भी ज्यादा होता जाएगा, तो जितना ज्यादा ये होगा उतना ज्यादा ये होगा। तो बताने का मकसद ये है कि ये सारे ही रिएक्शन एट द सेम टाइम ये सारे हो रहे हैं, सही है। बस अच्छा सही है। इसमें ये है कि कोई ज्यादा कंसंट्रेशन की वजह से ज्यादा हो रहा होगा, कोई कम कंसंट्रेशन की वजह से कम हो रहा होगा, सही है। ठीक है। और एक और बात अगर आपने नोट की हो तो आप यहाँ नोट कर सकती हैं वो बात, कि हमने क्या देखा, हमने ये बात देखी कि हमारे पास जब एक मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल है ना, इसके ऊपर कोई फ्री रेडिकल नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, मॉलिक्यूल है ना। एक मॉलिक्यूल जब फ्री रेडिकल के साथ मिल रहा है तो फ्री रेडिकल और मॉलिक्यूल ही बना रहा है ना। हम्म। आप देख लें किसी भी रिएक्शन में, यहाँ फ्री रेडिकल मॉलिक्यूल मिला, मॉलिक्यूल और फ्री रेडिकल बन गया, मॉलिक्यूल फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल मॉलिक्यूल। अब रिएक्टेंट साइड पे अगर आपके पास एक भी फ्री रेडिकल है ना, तो प्रोडक्ट साइड पे फ्री रेडिकल लाजमी आ रहा है ना। ओके। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री रेडिकल जो बना है ना वो ऑड नंबर के उसमें है, हमारे पास पूरे इलेक्ट्रॉन थे नहीं। तो पूरे इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो जब जितनी मरतबा भी रिएक्शन होगा इलेक्ट्रॉन तो पूरे नहीं हो सकते ना। जी। तो ये चलता रहेगा, ये इसी वजह से प्रोपिगेट हो रहा है, इसीलिए ये रिएक्शन बढ़ता जा रहा है, चलता जा रहा है, क्योंकि हमारे पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हमारे पास जैसे पॉलीमराइजेशन में होता है ना कि ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो वो रिएक्शन चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, इसी तरह यहाँ पर भी ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसी वजह से रिएक्शन चले जा रहा है। ठीक है, इसलिए प्रोपिगेट कर रहा है। अब अगर हमें इसको स्टॉप करना है तो स्टॉप करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, स्टॉप करने के लिए जो सिर्फ और सिर्फ आसान तरीका हमारे पास, एक द ओनली पॉसिबिलिटी इज दैट कि हमारे पास फ्री रेडिकल से ही रिएक्ट कर जाए है ना। सिर्फ यही पॉसिबिलिटी है और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि फ्री रेडिकल से मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा आपके पास, मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, तो अगर आप देखें तो हमारे पास CH3 का फ्री रेडिकल है,
हमारे पास Cl का फ्री रेडिकल है। और कौन से फ्री रेडिकल है हमारे पास, अगर आप देखें पीछे, हमारे पास CH3Cl, हमारे पास CH2Cl का भी फ्री रेडिकल है, CH2Cl का भी फ्री रेडिकल है, हमारे पास CHCl2 का भी फ्री रेडिकल है, और हमारे पास CCl3 का फ्री रेडिकल। तो हमारे पास ये 5 फ्री रेडिकल है पूरे मीथेन के उसमें, है ना। ऐसी है मिनाल। जी जी। तो ये फ्री रेडिकल किसी भी 4 रिएक्ट के साथ मिल सकता है ना, पॉसिबल है कि ये सबके साथ मिल जाए, बल्कि 4 क्या बल्कि 5 के साथ मिल सकता है ना, खुद के साथ भी तो मिल सकता है। ठीक है। तो ये किसी के साथ भी मिल सकता है, तो इसी तरह ये 4 भी 5 के साथ मिल सकते हैं, ये सारे के सारे 5 के साथ मिल सकते हैं। तो हमारे पास देखो कितनी सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना, कितने जी। अलग अलग मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर CH3 का रेडिकल Cl रेडिकल के साथ मिलता है तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3Cl, है ना। ओके। अगर हमारे पास CH3 का मॉलिक्यूल इस फ्री रेडिकल सॉरी किसके साथ मिल जाए, CH2Cl के साथ मिल जाए, तो हमारे पास क्या बनेगा, देखो CH3CH2Cl बन जाएगा, है ना। अगर हमारे पास जी। CH3 का फ्री रेडिकल CHCl2 के साथ मिल जाए तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3CHCl2 बन जाएगा। और अगर CH3 का फ्री रेडिकल मिल जाए CCl3 के साथ तो क्या बनाएगा, CH3CCl3। और एक और बात जो आपको बताना बहुत जरूरी है कि अगर CH3 का फ्री रेडिकल CH3 के साथ ही मिल जाए तो हमारे पास क्या बन जाएगा पता है आपको, हमारे पास बन जाएगा इथेन। क्या बन जाएगा, इथेन। अब इथेन। और हम फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कर किसके रही हैं, मीथेन की। किसकी कर रहे हैं हम लोग, मीथेन की मीथेन कर रहे के। हैं। मीथेन की कर रहे हैं हम लोग, अभी हम जो कर रहे हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन वो किसकी कर रहे हैं, मीथेन की कर रहे हैं। और मीथेन के अंदर 4 हाइड्रोजन होते हैं, तो प्रोपेगेशन में हमारे पास 4 स्टेप्स हैं, है ना। हम्म। और अभी उन दोनों की वजह से क्या बन गया, इथेन बन गया। दो फ्री रेडिकल की आपस में ज्वाइनिंग की वजह से क्या बन गया, इथेन बन गया। इथेन के अंदर कितने हाइड्रोजन है, 6। तो अब जो है प्रोपेगेशन इथेन की भी स्टार्ट हो सकती है अगर फ्री रेडिकल इस पर अटैक करे। सही है। अगर ओके। क्लोरीन का फ्री रेडिकल अगर क्लोरीन का फ्री रेडिकल इथेन के ऊपर अटैक करता है तो इसकी अपनी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट हो जाएगी। सही है, क्योंकि हम रोक ठीक तो है। नहीं सकते ना, रिएक्शन के अंदर क्या चल रहा है कितना चल रहा है हम उसको रोक नहीं सकते, रिएक्शन तो खुद ही चल रहा है ना, उसको हम रोक नहीं सकते हैं। तो ये हो सकता है इथेन वहां बन जाए और इथेन बनने के बाद अगर फ्री रेडिकल इसके ऊपर अटैक कर दे तो ये रिएक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन डेफिनेटली ये रिएक्शन कम होगा, क्योंकि पहली बात तो पॉसिबिलिटी है कि आपके पास 4 रिएक्शन है, चारों की अलग अलग कंसंट्रेशन है, चारों अलग अलग पैटर्न पे चल रहे हैं। उसके बाद दूसरा, 2 मिथाइल फ्री रेडिकल आपस में ज्वाइन हो जाए, ये पॉसिबिलिटी बहुत दूर की बात है। लेकिन अगर दोनों ज्वाइन हो जाएंगे तो फिर उसकी डेफिनेटली इथेन की जो कंसंट्रेशन होगी वो बहुत कम होगी, जितनी कम कंसंट्रेशन होगी उतना कम ये रिएक्शन होगा। ठीक है, ठीक है। तो ये बात समझ में आई। जी। तो पहले स्टेज में हम क्या करते हैं भाई, इनिशिएशन, दूसरे में प्रोपेगेशन, तीसरे में टर्मिनेशन। इनिशिएशन हमेशा क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ होगी। प्रोपेगेशन के अंदर आप देखेंगे कि पहले स्टेज के पहले स्टेप के अंदर आपका पहले रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन कम होगा, HCl बनेगा, और दूसरे के अंदर हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। इस तरह ये रिएक्शन चलता रहेगा जब तक आपके पास हाइड्रोजन खत्म ना हो जाए। एंड एट द एंड टर्मिनेशन में आपने क्या करना है, टर्मिनेशन में आपके पास क्या होगा, सिंपली आपने 2 फ्री रेडिकल्स को आपस में ज्वाइन करके पॉसिबिलिटीज दिखानी है। व्हाट माय पॉइंट। यस। अच्छा, ये हो गया है हमारा फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, हमने सब कर लिया। आपका होमवर्क क्या, आप लिखते हैं कि आपने C2H6 की फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करके दिखानी है मुझे और सेंड करना। ठीक है, हम्म। आपका homework है। चलो एक है हमारे पास प्रोपेन की छोटी सी एक एग्जाम्पल है, वो कर लेते हैं ताकि आपको उसका भी ओवरव्यू मिल जाए कि कुछ और चीज़ें भी हैं वो भी आपको समझ में आनी चाहिए। और वो क्या है, वो इस तरह है, देखें अगर हम बात करें प्रोपेन की प्रोपेगेशन। ठीक है, इथेन की आपने खुद करनी है, बहुत आसान है। अभी हम बात करें किसकी, प्रोपेन।
इसकी बात कर रहे हैं प्रोपेन की, सो इट इज CH3 CH2 CH2, है ना। जी। तो पहला स्टेज क्या होता है आपके पास, इनिशिएशन, है ना। दैट इज रिमेन सेम फॉर एवरीथिंग, वो तो हमेशा कैसा रहेगा, सेम ही रहेगा ना। तो ये तो आपने ऐसे लिखना है। बात कर लेते हैं प्रोपिगेशन में जो आपके पास प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। प्रोपिगेशन में हमेशा HCl बनता है, आपको पता है पहले स्टेज में। दूसरे स्टेज में क्या बनता है आपके पास क्लोरीन सब्स्टिट्यूट हो जाता है ना। तो जी। क्लोरीन सब्स्टिट्यूट कराना तो बहुत आसान है। इसकी बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास है CH3 CH2 CH3। अब आपने इसका रिएक्शन किसके साथ कराया, क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ। तो कितने चांसेस हैं कि आपके पास हाइड्रोजन कम हो जाए, ये वाला, है ना, और क्या बन जाए HCl, ऐसी है ना। तो आप ये अगर ये वाला हाइड्रोजन कम हो या ये वाला हाइड्रोजन कम हो, बात तो एक ही है ना, सेम है। ठीक है। क्योंकि लास्ट वाला मैंने आपको बताया, लास्ट वाला हो या फर्स्ट वाला हो, उसमें कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होता है। तो प्रॉब्लम कहाँ आ सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है फॉर एग्जाम्पल अगर हाइड्रोजन बीच वाले कार्बन में से अलग हो जाए तो प्रॉब्लम आ सकती है ना। तो ये भी पॉसिबिलिटी आपने ध्यान में रखनी है कि जब रिएक्शन होगा, जब आप हाइड्रोजन रिमूव कर रही होंगी, तो हाइड्रोजन रिमूव अगर साइडों से हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनिशियल मतलब ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन में से हाइड्रोजन काम हो रहा है, तो ये दोनों एक ही बात है। दे आर जस्ट मिरर इमेज फॉर ईच अदर। उस तरफ से कम कर दो या इस तरफ से कम कर दो, बात एक ही है। लेकिन जो बीच वाला कार्बन है वो अलग है। तो अगर उसमें से हाइड्रोजन कम होगा तो आपके पास अलग फ्री रेडिकल बन सकता है ना। ओके। तो ये पॉसिबिलिटी आपको जहन में रखनी है, ये पॉसिबिलिटीज हैं। अब जब ये पॉसिबिलिटीज बनेगी ना, तो टर्मिनेशन में भी इशू आएगा। टर्मिनेशन के अंदर भी इशू आ सकता है। और टर्मिनेशन में क्या इशू आएगा, फॉर एग्जांपल आपके पास CH3 CH2 और CH2 का जो फ्री रेडिकल है ये आपस में मिल जाए, है ना। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो उतना कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा, दोनों मिला के लिख दिए जाएंगे ना। क्या लिख दिया जाएगा, आपके पास CH3 CH2, और जो फ्री रेडिकल है इन दोनों को आपस में एक साथ मिलाया जाता है, CH2 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 और CH3, है ना। जी। तो ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस यहाँ प्रॉब्लम क्या होगी, आपके पास 2 4 6 कार्बन बन गए और हाइड्रोजन आपके पास हो गए हैं 14। तो ये एक हेक्सेन बन जाएगा और हेक्सेन की अपनी प्रोपगेशन शुरू हो जाएगी। उसके अलावा अगर आपके पास CH3 CH2 CH2 का मॉलिक्यूल अगर किसके साथ मिल जाए, इस वाले के साथ मिल जाए, तो क्या होगा। अब आपने याद रखना है, देखो फ्री रेडिकल के साथ मिलता है खाली, ठीक है। तो CH3 आपने लिखा, CH2 आपने लिखा, फिर फ्री रेडिकल वाला CH2 लिखा। अब ये CH2 किसके साथ मिलेगा, इसके साथ मिलेगा, CH के साथ, सही है। सही है। तो CH3 कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, सही है भाई। ये आपने याद रखना है। तो ये भी बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल दोनों ही एक जैसे आपस में मिल जाए, CH3 फ्री रेडिकल CH3 ये मिल जाए किसके साथ, इसी वाले के साथ मिल जाए, तो आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि फ्री रेडिकल आपस में मिल जाएगा, यानी कि CH आपस में मिल जाएंगे और CH3 यहाँ अलग रह जाएंगे और दो CH3 कहाँ आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, सही है। ठीक है बेटा, देखो ये मैं बता रहा हूँ ना, ओके। इसी तरह इफेक्ट करेगा अमीना बेटा। जब आपके पास सेंट्रल वाला कार्बन के ऊपर से फ्री रेडिकल हटेगा तो देखो टर्मिनेशन के बाद जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी पॉसिबिलिटीज में डिफरेंस आ रहा है। देखो ये प्रोडक्ट अलग बन गई, ये प्रोडक्ट अलग बन गई, ये प्रोडक्ट अलग है। अगर आप सिंपल करेंगी तो आपके पास हेक्सेन बन गया है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके पास क्या बन गया, मिथाइल पेंटेन बन गया और यहाँ पर आपके पास डाई मिथाइल ब्यूटेन बन गया। तो यहाँ पर आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट्स हैं उनमें मतलब डिफरेंस आ रहा है। तो इस तरह ये रिजल्ट को जो है क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। ठीक है मनाल, कोई प्रॉब्लम बेटा। नो सर। चले अब हम देख लेते हैं, ये सारी चीजें आपने याद रखनी है, ध्यान में रखनी है। तो आप जब पास पेपर्स कर रहे होंगे तो आपको इसमें आसानी होगी, ठीक है। अब देखो एक पास पेपर का क्वेश्चन भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि पेपर में मतलब जितना मुश्किल ये है ना, इतना मुश्किल सवाल पेपर में आता नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ। मार्च 2018 में जो सवाल आया है, बड़ा ही सिंपल सवाल आया था। आपके पास एक मॉलिक्यूल था, ठीक है,
और उन्होंने दिखाया कि क्या हुआ भाई, आपके पास ये था और इस पे क्या हो गया, क्लोरीन सब्स्टिट्यूट हो गया। सही है पहले रिएक्शन पे। और फिर दूसरे रिएक्शन में उन्होंने दिखाया कि आपके पास डबल बॉन्ड बन गया बाद में ना। तो ये रिएक्शन डेफिनेटली सात को और अमीना को शायद समझ में आ रहा हो, शायद, मुझे पक्का नहीं पता, सात को तो आ रहा होगा, अमीना का मुझे याद नहीं। ये एक्चुअली एलिमिनेशन रिएक्शन है और एलिमिनेशन रिएक्शन में हमने HCl निकालना होता है। तो ये जब डबल बॉन्ड बन जाता है, इधर से Cl निकलेगा, इधर से H निकलेगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा सेकंड स्टेज में। वो बात की कहानी है क्योंकि आपको पढ़ाया नहीं है, ठीक है। तो इसको छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन को छोड़ देते हैं। आपके पास सवाल था स्टेट द एसेंशियल कंडीशन फॉर रिएक्शन 1। एसेंशियल रिएक्शन फॉर कंडीशन 1 व्हाट इज दैट, इट इज यूवी लाइट, सिंपल है ना। जी। उसके बाद आपके पास एक जो है कॉलम बना हुआ था जिसमें लिखा हुआ था नेम ऑफ स्टेप और एक तरफ लिखा हुआ था रिएक्शन, ठीक है। तो ये आपने अब कंप्लीट करना था। तो इसमें उन्होंने पहले स्टेज को छोड़ा हुआ था और यहाँ क्या लिखा हुआ था, क्लोरीन मूविंग टू टू क्लोरीन रेडिकल्स। क्या स्टेज का नाम होगा, क्या आपने लिखना था। सेकेंडली उन्होंने प्रोपिगेशन दे दिया था और उन्होंने आपके पास ये रिंग बना दिया था और इसका रिएक्शन क्लोरीन फ्री रेडिकल से कराया था। तो उन्होंने बता के दिखाया कि आपके पास एक फ्री रेडिकल बन रहा है और साथ में क्या बनेगा ये आपको बताना था। सेकेंडली उन्होंने ये स्पेस छोड़ी हुई थी और हम कह रहे थे कि अगर आपके पास फ्री रेडिकल क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ मिल जाए तो आपके पास क्या बनेगा। और इन द एंड दे आर आस्किंग फॉर द टाइप ऑफ रिएक्शन एंड देन फ्री रेडिकल के साथ मिल रहा था तो आपके पास क्या बनेगा। देखो ये अगर आपको आता होगा ना तो ये अगर आप सही से पढ़ लेंगी तो आपके लिए पूरा रिएक्शन बहुत आसान है। मिनाल पहले वाले स्टेज का नाम क्या होगा, इनिशिएशन। बहुत आसान है ये, ठीक है ना। जी। उसके बाद आप देखें सेकंड स्टेज में प्रोपेगेशन के फर्स्ट रिएक्शन में आपने देखा कि एक मॉलिक्यूल था उसने फ्री रेडिकल के साथ रिएक्शन किया, फ्री रेडिकल बन गया और यहाँ क्या बनेगा, HCl। ठीक है। और आपको पता है कि दूसरा भी फ्री रेडिकल है और ये मॉलिक्यूल है, तो ये कौन सा स्टेज होगा, प्रोपेगेशन। ठीक है। और आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पर आपके पास क्लोरीन सब्स्टिट्यूट होगा, है ना। जी। और साथ साथ क्या बनेगा, क्लोरीन का फ्री रेडिकल। और ये आखिरी स्टेज में आप देख रहे हैं कि दोनों ही आपके पास क्या है, फ्री रेडिकल्स आपस के अंदर ज्वाइंट हो रहे हैं। तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास ये टर्मिनेशन, है ना। जी। इस तरह का बड़ा ही आसान सा सवाल आप 2018 मार्च में देख सकती हैं। तकरीबन 4-5 नंबर का था और ये पेपर में आया, सही है। इस तरह की परेशानियां है तो बताएं। नहीं, क्लियर। आसान है तो चलो एक और सवाल कर लेते हैं, उसके बाद क्लास को एंड कर देंगे। आपके पास ये बहुत इम्पोर्टेंट सा एक क्वेश्चन, ये एमसीक्यू था, ठीक है। और ये आया था जून 2010 में, पेपर 11, ठीक है। ये सवाल आया था, इसमें लिखा होता व्हेन हीटेड विद क्लोरीन द हाइड्रोकार्बन 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन अंडरगोस फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। आपके पास क्या है, 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ये जो है क्या कर रहा है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कर रहा है, ठीक है। इन्हें प्रोपेगेशन स्टेप इन्होंने दिया है, प्रोपेगेशन स्टेप। और देखो ये मॉलिक्यूल बना हुआ है CH3 CH2 CH3 और यहाँ पर CH3 लिखा हुआ है और यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है, CH3 लिखा हुआ है। और इन्होंने क्या किया, क्लोरीन के साथ इसको रिएक्शन कराया और यहाँ पर बन रहा है X रेडिकल। क्या बन रहा है, X रेडिकल और HCl, ठीक है। वो आपसे पूछ रहे हैं कि पॉसिबिलिटीज बताएं, हाउ मच पॉसिबल स्ट्रक्चर्स आपने बताने, कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं किसके, एक्स के फ्री रेडिकल के। तो फिर वही सवाल है जैसे मैंने अभी आपको प्रोपेन वाला करा के दिखाया ना, कितनी पॉसिबिलिटीज हैं कि कितने कार्बन पे से फ्री रेडिकल बन सकता है, अलग अलग ना, अलग अलग तरह के बन सकते हैं। तो अगर आप देखें तो अगर हम इसको देखें गौर से तो हमारे पास देखो ये वाला कार्बन, ये वाला ये तीनों एक ही कार्बन पे है, इस पे तो हाइड्रोजन है ही नहीं, है ना। तो इसका तो हाइड्रोजन रिमूव नहीं हो सकता ना, इन तीनों का हाइड्रोजन रिमूव हो सकता है। तो इन तीनों में से किसी के ऊपर से भी हाइड्रोजन रिमूव हो, किसी एक के ऊपर से भी हाइड्रोजन रिमूव हो,
तो ये इस तरह बनेगा, है ना, यही कंडेंस फॉर्मूला जी। होगा। किसी पे से भी हम्म। हटे, कोई सी, तीनों ही ब्रांचेस हैं, तीनों ब्रांचेस पे से किसी एक ब्रांचेस में से भी हाइड्रोजन हटेगा तो सबका कंडेंस फॉर्मूला यही बनेगा। इसका मतलब है इन चारों पे से अगर हम हाइड्रोजन हटाएं तो पॉसिबिलिटी यही बनेगी खाली, है ना। जी। और एक और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है आपके पास, एक और पॉसिबिलिटी ये हो सकती है आपके पास कि आपके पास से ये जो बीच वाला कार्बन है इसमें से हाइड्रोजन हट जाए, है ना। हम्म। और एक और पॉसिबिलिटी आपके पास क्या हो सकती है कि जो पहला वाला कार्बन है इस पे से हाइड्रोजन हट जाए, है ना। सही। ये तीन पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं जो कि बन सकते हैं। तो इसका आंसर जो था एमसीक्यू में वो क्या होगा, 3। ओह अच्छा, ठीक है। सही है। तो इस तरह के एमसीक्यूज में बहुत सवाल आते हैं, तो उसको आपको फोकस करना है, उसके पास पेपर्स की प्रैक्टिस करनी है। एमसीक्यूज में बहुत आता है, बहुत ज्यादा आता है। एमसीक्यूज में ठीक। ज्यादातर आपके पास इस तरह के सवाल आ जाते हैं, आपको फॉर एग्जांपल बना के दे दिया, अब आप लगा के दिखाएं क्लोरीन कहाँ लगेगा, तो आप कहीं पर भी लगा सकते हैं क्लोरीन ना, यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ यहाँ कहीं पर भी लगा सकते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि क्लोरीन हाइड्रोजन को हटाकर लगता है, ठीक है। क्लोरीन हाइड्रोजन को हटाकर लगेगा और पहले स्टेप में हमेशा HCl बनेगा और दूसरे स्टेप में क्लोरीन लगेगा, सही है। सही। और तीसरी बात आपको ये याद रखनी है कि भाई ये जो रिएक्शन होता है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सारे ही रिएक्शन क्या होते हैं, 2 स्टेज रिएक्शन होते हैं। कौन से रिएक्शंस होते हैं, 2 टू स्टेज स्टेज है। रिएक्शन, ठीक है। और बस एक ही रिएक्शन 1 स्टेज है, वो आप पढ़ेंगी हैलोजन अल्केन में। बाकी सारे स्टेज आपके पास देखें, मीथेन था, मीथेन ने क्या बनाया, इंटरमीडिएट मिथाइल रेडिकल, और उसके बाद क्लोरीन क्या हो गया, इसमें सब्स्टिट्यूट हो गया। तो दिस वाज फर्स्ट स्टेप एंड दिस वाज सेकंड स्टेज, ठीक है ना। तो वी हैव 2 स्टेप रिएक्शन राइट, दिस वन। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादातर मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस आर 2 स्टेप। सिर्फ एक रिएक्शन सिंगल स्टेप है, वो है SN2। अब वो हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, हैलोजन वाली केस में, ठीक है। तो ये 2 ठीक स्टेज है। रिएक्शन है, ये भी वो पूछते हैं 2 मार्क्स के लिए, कभी कभार आपको बनाना पड़ती है। तो आपको ये याद रखना है कि आपकी हमेशा ये वाली जो लाइन मैंने बनाई है ना, ये ऊपर हो, ठीक है। सही। तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ये है और इस वाले की एक्टिवेशन एनर्जी ये है, सॉरी यहाँ तक है, यहाँ तक है। ये 2 अलग अलग एक्टिवेशन एनर्जी हैं। तो ये 2 स्टेप्स हैं, ये दोनों स्टेप्स होते हैं तो आपका रिएक्शन क्या होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है। सही है। इज दैट क्लियर, यस। एनी प्रॉब्लम। नो। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। आपका काम क्या है, आपको इसको रिवाइज करना है, इसके नोट्स बनाने हैं, इसके नोट्स बनाने के बाद आपने जो है इसके पास पेपर्स को सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। ठीक है। एनी प्रॉब्लम साथ, अमीना। कि हमारे 2 बच्चे बहुत खामोश हैं, देखें कितने खामोशी से जवाब देते हैं। चलो ठीक है, दैट्स गुड बच्चों। और इंशाल्लाह विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास टुमारो। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मिनाल। हेलो।